Hello dear students, this is your teacher Rebecca Dale. Welcome back to our knowledge spot. Dear student, today's videos is very important because we have to cover chapter number 6 of class 10th. Why this is so important? Because normally students get confused in this chapter. A lot of formulas are here and they all are mixed together. So no need to be worried because this is going to be a complete video of chapter number 6, including the short question, the definition and the long question. And I must say, if you're going to see this one, so I don't think so you need anything else to do this chapter or to cover this chapter. So we're going to start thoroughly from the very first question. This is define standard deviation. This is the definition that you that most probably will be part of the paper और ये काफ़ी बार आ चुकी है. So the very first is define standard deviation. Next is define median and the formula. अब आपसे वो median के बारे में पूछ रहा है, उसका formula पूछ रहे हैं. Now what is the definition? Median is the middlemost observation in an arranged data. The very important thing in this definition, आप कोई भी chapter 6 है, क्योंकि देखिए वैसे तो आपने schools में कहीं पर भी आप लोगों ने ये chapter किया हुआ है. एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास सबके पास है. हमारे पेपर की स्कीम ऐसे बनती है कि चैप्टर 1-2 देन 3-4 और 5-6 अगर देखें तो लाइक देयर आर सम स्टूडेंट्स हु पिक फर्स्ट 4 चैप्टर फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन. नो मैटर यू आर नॉट डूइंग दिस चैप्टर फॉर द लॉन्ग वन, बट एक्चुअली यू हैव टू डू दिस चैप्टर फॉर द शॉर्ट वंस. तो अब ये वो डेफिनेशन है, जैसे मीडियन आपने सुना है कि मीडियन मालूम करने के लिए आप कोई भी मॉड मालूम करें, अरिथमेटिक मीन मालूम करें, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें, आपको डाटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन जब आप मीडियन मालूम करते हैं सो यू हैव टू अरेंज द डेटा. दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई डेफिनेशन में ये चीज़ क्लियर कट लिखी है कि यू हैव टू अरेंज द डेटा. नो मैटर असेंडिंग, नो मैटर डिसेंडिंग, वट एवर यू वॉन्ट, बट यू हैव टू अरेंज द डेटा. Now, median is the middlemost observation in an arranged data set. It divides data set into two equal parts. Now, the next is the representation. अगर हम देखें तो आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन मालूम करने का जो तरीका होता है वो x है और उसके ऊपर छोटी सी बार लगाते हैं तो वो अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है. When we are talking about the median, so the representation is totally different, like opposite. अब देखें इसके ऊपर एक ये आपको साइन नज़र आ रहा है, तो रिप्रेजेंटेशन है किसकी? मीडियन की. He is asking for the two formula also. Okay, this is case 1 and this is case 2. जब number of observation आपके पास odd है तो आपके पास ये formula है, size of n+1/2 value. When the number of observation are even, so there is another formula, n/2 n+2. ये th लिखा हुआ है, ये value है, ये 1/2 size of. ठीक है, अब देखें formula तो आपको as it is याद करना पड़ेगा. द वेरी नेक्स्ट इज, वैसे ये फॉर्मूला ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे राइट नाउ, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज इन पास्ट पेपर एंड देयर ही वाज आस्किंग ओनली द डेफिनेशन एंड द फॉर्मूला. नाउ ओके, नेम टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. एक्चुअली द वेरी मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सेंट्रल टेंडेंसी, एंड सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने के देयर आर मेनी वेज वी हैव इन दिस चैप्टर. Now he is asking only for 2-1. The measure of central tendency or the technique which are used to determine the central tendency of a data set are called दिस एम, लाइक इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. Two of the measure of central tendency are listed below. There are two only they ask, so we have to tell them only two. Arithmetic mean and median. The very next question is what is the cumulative frequency? The next is class limit and the very next is okay, I have write 2 times cumulative frequency, so it's just by mistake. Okay, next see. Another question is the salaries of the 5 teachers are this, like this number, this year 5 salaries given है different teachers की, और आपने मालूम करनी है उसकी range मालूम करनी है. You have to find the range. So this is nothing, this is you have to find the range. Now what is the formula for range? सोचिए इतना simple question है. First you have to find the maximum value, that is x बेस में m लिखा है, इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं. एंड यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस ऑब्जर्वेशन और इन दिस डेटा. देर आर 2 बेसिक वर्ड दैट दे विल यूज. द वन इज ऑब्जर्वेशन, द अदर इज डेटा और द वैल्यू. Dear student, there are some people who call it data, something like that, but the real pronunciation is data, like D-A-Y-D-A and data. Now the maximum value is 15,000. In the minimum value, we have to represent XO, like original value or the basic value or the minimum value. That is 11,500. Now the range, the formula for range is XM minus X naught. नॉर्मली आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, मैथ्स में भी, इस छोटे से ओ को हम नॉट भी बोलते हैं या ओरिजिनल भी बोलते हैं.
ओके पहले अपनी जो लार्जर वैल्यू वो लिखें, फिर मिनिमम वैल्यू को लिखें और दोनों को कर दें सब्ट्रैक्ट। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। तो ये है आपकी रेंज का क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय द डायरेक्ट मेथड एंड दीज आर द ऑब्जर्वेशन और द वैल्यूज और द डेटा। नाउ यू हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मालूम करने का फॉर्मूला देखें। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ, थोड़ा अपने लोअर ग्रेड्स में चले जाएं, तो वहाँ पर आपने एक वर्ड यूज़ सुना था एवरेज। तो एवरेज मालूम करने का फॉर्मूला होता था जो अपने क्लास 5 या 6 में पढ़ा था, सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। दिस इज़ द सेम टेक्निक और द टर्म, बट राइट नाउ in this standard or in this grade we just replace that thing with this formula, that is x bar is the representation of arithmetic mean, that is equal to sigma x by n. Now what is this? This is the letter called sigma and the meaning of this is summation. Like sigma, summation means sum up करना। ये जितनी वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ लिख दें और डिवाइड कर दें 7 के साथ। अब आप क्या करेंगे, आप देखिए सिंपल, इन सबको जब आप प्लस करेंगे, 7 क्यों लिखा है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास 7 है तो वही लिखेंगे। अगर 8 होता तो 7 की जगह 8 आ जाता। इनको हमने किया प्लस और 7 से कर दे डिवाइड, सो यू विल गेट 290, दैट इज़ अरिथमेटिक मीन। फर्दर देखें, यू हैव टू फाइंड हार्मोनिक मीन। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम्स इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेपर नाउ। अब ये आपको एक बॉक्स की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। समटाइम दे विल गिव यू द बॉक्स एंड मे बी दे जस्ट राइट 12,5, 8, 4। सो डोंट बी वरी विद दीज टू टेक्निक्स। द फॉर्मूला इज सेम ऑफ कोर्स। हार्मोनिक मीन का अच्छा एक और कैटेगरी है इस चैप्टर में, जैसे ग्रुप और अनग्रुप की। व्हेन देयर इज़ नो फ्रीक्वेंसी, मतलब जब वो फ्रीक्वेंसी को मेंशन नहीं करता तो इसका मतलब वो अनग्रुप है, और अगर कभी फ्रीक्वेंसी आ जाए तो वो ग्रुप डेटा है। यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन देयर इज ओनली सिंगल इन्फॉर्मेशन, दैट इज डेटा। ही नेवर गिव एनी काइंड ऑफ अनदर इन्फॉर्मेशन। दिस इज टोटली 12,584। आप क्या करेंगे, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन होगा एंड दिस इज योर सोल्यूशन। यू हैव टू फाइंड स्टार्ट योर सोल्यूशन मेकिंग दिस टेबल। लाइक आप इसको वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखें। अब लिखें 1/x। अब 1/x में आप क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर हैं इनका ये रेसिप्रोकल लेना है, मींस हर नंबर को 1 से डिवाइड कर दें। 1, नो नीड टू राइट कम्प्लीटली, यूज़ योर कैलकुलेटर, फिक्स योर कैलकुलेटर, कि आप पहले उसको फिक्स कर लें 4 डिजिट तक, चाहे 2 या 3 डिजिट तक उसको फिक्स कर लें। तो ये जो मैंने किया है इसको, ये क्वेश्चन बेशक आप कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं, मतलब उसको फिक्स किए बगैर भी कर सकते हैं। लाइक वो जब लॉग का क्वेश्चन करेंगे इसमें लॉगरिदम भी आएगा, तब आप उसको फिक्स कीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कर लें 1/12 इज इक्वल टू 0.0833, देन 1/5 इज इक्वल टू 0.2, 1/8 इज इक्वल टू 0.125, 1/4 इज इक्वल टू 0.25। देन आप इनको ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए आप ये ना देखें कि मैंने ऐड क्यों किया है, पहले आप मेमोराइज़ करें इसका फॉर्मूला। अपने पास रफ कॉपी रखें, रफ रजिस्टर रखें अपना। अब इसको आप फॉर्मूला याद करें। Now see what is the formula. Harmonic mean is equal to n divided by sigma 1/x. ज़रा थोड़ा सा फोकस करें तो फॉर्मूले में देखें, सबसे पहले क्या है आपके पास 1/x। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले में एक्चुअली व्हाट ही इज़ आस्किंग इज़ वेरी सिंपल व्हाट टू डू। ही इज सेइंग 1/x मीन x, व्हाट इज x? x is your question, x the data, the information, the observation, the values. Now 1/, मीन्स हर नंबर को 1/1 आपने डिवाइड करके यहाँ रख लिया इस बॉक्स के अंदर। अब ये क्या है, सिग्मा। तो अगर ये सिग्मा ना होता तो हम इनको कभी भी प्लस या सम अप ना करते, बट इन द क्वेश्चन और इन द फॉर्मूला लाइक हमारे पास ये सिग्मा का साइन है। इट मीन्स ये जितनी भी आपने ये सारी वर्किंग की है, अब इनको कर दें प्लस। व्हाट इज़ योर एन? लाइक टोटल नंबर आर 4, 1 2 3 4। आप एन हमेशा टोटल नंबर करके, हमेशा हर क्वेश्चन में चाहे कुछ भी करना हो, एन का मतलब हमेशा टोटल नंबर होता है। सो राइट नाउ द नंबर्स आर 4, सो व्हेन यू ऐड देम यू विल गेट 0.6583। Now you can see it is very clear from the formula that you have to divide them. तो ऊपर लिखें 4 और डिवाइड कर दें इसको, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 6.0763। Now the next is फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट। देयर इज़ अनदर, ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अब इस तरह ये क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक वो क्वेश्चन आया था, देखिए ये है आपका वो क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। अब ये वो क्वेश्चन है, अब एक और क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से, वही आपने एक्स बार लिखना है, सिग्मा एक्स बाय एन। ये आपको वैल्यूज़ गिवन है और डिवाइडेड बाय 8, बिकॉज राइट नाउ द वैल्यूज़ आर 8। डोंट फॉरगेट टू राइट एक्स बार, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। ओके,
नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है फाइंड मॉड या डिफाइन मॉड। अच्छा ये है डिफाइन मॉड। मॉड की डेफिनेशन लिखिए। एक्चुअली मैं बताती हूँ कि मॉड होता क्या है। किसी भी डाटा में, किसी भी इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन में वो वैल्यू जो मोस्टली रिपीट होती है तो उसको सिंपल बोलते हैं मॉड। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि वो कोई वैल्यूज़ आपको गिवन होगी कोई डाटा, तो दे विल आस्क यू what is the mod of the observations. Okay, the next is calculate variance for the data. ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। वो बच्चे जो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, तो उनके लिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखें इसमें क्या करना है। यू विल बी द लकी वन इफ दिस क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द पेपर, बिकॉज चैप्टर 5 में से डिमॉर्गन्स लॉ होता है और यहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन। ओके, कैलकुलेट द वेरिएंस। अब वेरिएंस मालूम करने का, देखिए ये एक डाटा है हमारे पास, एक इन्फॉर्मेशन वैल्यूज़ हैं। ओके, सबसे पहले अगर आप फॉर्मूला देखें तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला वेरिएंस मालूम करने का वो है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, और इसके ऊपर होल स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, दोबारा देखें, इसको याद कर लें, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो थोड़ा सा फोकस करें तो फॉर्मूले के अंदर आपको क्या गिवन है, एक्स बार। अब डेफिनेट बात है, आपको फॉर्मूले में एक्स बार अगर गिवन है तो इसमें एक्स बार तो आपको पहले से आता है, आपने अरिथमेटिक मीन सीखा है कैसे मालूम करते हैं। तो ये आपके पास वो सारी वैल्यूज़ हैं, सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। पहले आप एक्स बार मालूम करें, सिग्मा एक्स बाय एन। आपने सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, आपने प्लस कर दिया और डिवाइड कर दें 10 से। वाई? बिकॉज जो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So after adding these to all these observations divided with 10, you will get 7.5. Now follow the formula very carefully. The things will be so simple. Honestly, check करें. X minus x bar. You know what is x bar? This is your x bar. What is your x? X is your question. So make a vertical bar. एक बॉक्स बनाए वर्टिकल फॉर्म में। एक आपने एक जो बॉक्स क्रिएट करना है, सबसे पहला जो कॉलम होगा, these are called the columns. इस तरह की फॉर्म में कॉलम्स होते हैं। That is x, means that is your question. Now what is another thing that he is asking, x minus x bar. So this is x minus x bar. Now how can you find x minus x bar? What is your x? बताएं. That is 10. Good. What is your x bar? That is 7.5. It means हर x में से हर x बार को क्या करेंगे, हर वैल्यू के लिए माइनस करते जाएंगे। नहीं समझे, देखें दोबारा। 10 minus 7.5 will be 2.5. Again दोबारा 8 minus 7.5 this, 9 minus 7.5 this, 7 minus 7.5। तो बारी बारी ये आपने एक नया बॉक्स क्रिएट कर लिया, एक वर्टिकल फॉर्म में एक कॉलम आपको मिल गया। द वेरी नेक्स्ट इज एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ही इज आस्किंग कि अभी जो रिसेंटली आपने कॉलम फाइंड आउट किया है उसका बारी बारी उन नंबर्स का क्या कर लें, स्क्वायर फाइंड आउट कर लें। तो देखें 2.5 का स्क्वायर दिस, ये आपने सबके क्या ले लिए, स्क्वायर ले लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ, जिससे आप नहीं करेंगे ऐसी गलती। आपको एक बात का पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर लेंगे, इट विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। ओके, बट अगर आप अपने कैलकुलेटर में ऐसे लिखते हैं, लेट्स सपोज करें कि ये है आपके पास जैसे -2.5 है, तो अगर आप लिखते हैं 2.5 अगर आप स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है। लेकिन अगर आप लिखें -2.5 स्क्वायर तो आपको वैल्यू मिलेगी -25, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इट मीन्स ये रॉन्ग है। तो जब भी आपने किसी माइनस वैल्यू का स्क्वायर लेना है तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लिखेंगे, फिर देखिए ब्रैकेट -2.5 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। अब देखें आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। मीन्स अगर कभी नेगेटिव वैल्यू होती है तो आपको पहले ब्रैकेट में क्लोज करके फिर लगाना है। और अगर आप इस माइनस को इग्नोर भी कर दें, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर ले रहे हैं और स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, ये सारे आपने इसके क्या कर लिए, स्क्वायर्स ले लिए। स्क्वायर्स लेने के बाद फॉर्मूले में क्या है, दोबारा फॉर्मूले के पास जाएं और फॉर्मूले में बाहर क्या लिखा हुआ है, सिग्मा। लाइक आपने इनको सम करना है, इन सारी वैल्यू। अब हमें एक कॉलम नहीं, we have to add a row. So I don't have enough space here and I don't want to go to the very next page, because in this way you can see the question very clearly. The whole question is on the one page. So you need a column, अ रो। इन सब वैल्यूज़ को करने प्लस अब सिंपल आपने क्या करना है, ऊपर जो वैल्यू 68.5 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी थी, 10 थी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट योर वेरिएंस। ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज ज्योमेट्रिक मीन। ये एक नया टॉपिक है इसका, ज्योमेट्रिक मीन।
ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये देखें, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के तरीके चेक करें। सबसे पहले एक इसका बेसिक फार्मूला होता है और दूसरा है लॉगरिदमिक फार्मूला। अगर तो आपसे वो सिंपल, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है 248 वाला। ये 3 ऑब्जर्वेशन है 2,4,8 और आपने मालूम करना है इसका ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट इफ ही इज आस्किंग यू विद द हेल्प ऑफ बेसिक फार्मूला तो सिंपल आप ये करेंगे, और अगर वो बोल दे कि लॉगरिदमिक तो वो इसका नेक्स्ट पार्ट अब बाद में देखते हैं। चेक करें, पहले क्या करेंगे, यूजिंग बेसिक फार्मूला 2,4,8 आप इन तीनों नंबर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं तो इसकी पावर में 1/3 आएगा। फर्स्ट कहना है ये 4 होते तो 1/4 आता, अगर 5 होते तो 1/5 इसकी पावर में लिख देते। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। 64 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 64 आएगा। 3 इज कैंसिल बाय 3, यू विल गेट 4। नाउ द नेक्स्ट इज राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। आपने 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है सिर्फ अरिथमेटिक मीन की। अब ये आपके पास एमसीक्यूज भी आता है और क्वेश्चन भी। अब देखें, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है। तो 2 प्रॉपर्टीज बताएं जिससे अरिथमेटिक मीन चेंज होते हैं। नंबर 1 ओरिजिन से और नंबर 1 स्केल से। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट इज हिस्टोग्राम। लाइक हिस्टोग्राम की हमें ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, बट ही कैन आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ हिस्टोग्राम। नंबर 15, डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन। इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन भी पेपर में आता है और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी वो आपसे पूछ सकते हैं। नाउ द वेरी नेक्स्ट इज फाइंड मॉडल साइज ऑफ द शूज़। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, नो मैटर शूज़ वट एवर क्वेश्चन जो भी पूछे, टॉफिस शूज़ बॉक्सेस जो भी है, आपने अपना फोकस रखना है इस क्वेश्चन पे। और वो आपसे कह रहा है कि आपने क्या मालूम करना है, इनकी मॉडल साइज़, या मॉडल साइज़ मीन्स मॉड फाइंड आउट करना है। आप चेक करें, ऐसे क्वेश्चन होगा। अब आप इसमें से एक ऐसी वैल्यू ढूंढें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस ऑब्जर्वेशन या इस डेटा में से 5 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है। तो यहाँ 5 को जब काउंट करें, देखें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये 5 जो है रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसी को बोलते हैं मॉड। तो वो नंबर जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं मॉड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज नंबर 4। आई जस्ट इट्स माय पेज मे बी, ओके जस्ट अ मिनट। नंबर 4 ओके, यहाँ पर देखें ये है फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपने क्या मालूम करना है इसका, ये है क्वेश्चन आपका। नंबर 17 क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप क्या मालूम करेंगे, इसका अरिथमेटिक मीन मालूम करेंगे डायरेक्ट मेथड के साथ। अरिथमेटिक मीन देखिए हमने पहले भी मालूम किया, अब दोबारा से मालूम करें अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन मान लीजिए 2, यानी कि वो अनग्रुप था एंड दिस इज ग्रुप डेटा। अब कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप है और अनग्रुप है, तो चेक करें, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और अगर आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आती है तो इसका मतलब ये आपके पास मालूम आप अरिथमेटिक मीन कर रहे हैं, लेकिन मेथड कौन सा लगा रहे हैं, ग्रुप डेटा के साथ। ओके, अब ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको एक्स भी बोलते हैं, लेकिन आप इसको अपने माइंड में एक्स ही रखें। जैसे नंबर ऑफ हेड्स लिखे हुए हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। वैसे बाय द वे फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि कोई नंबर कितनी टाइम रिपीट्स हो रहा है। अब देखें ये 1 है, कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। 4 की फ्रीक्वेंसी है 3 एंड 5 की फ्रीक्वेंसी है 1। तो इस तरीके से ये डाटा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप ये आपका क्वेश्चन है, ये जो ग्रीन मार्कर से आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिल रही है, ये सारा क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो सोल्यूशन में आपके, अच्छा ये भी होता है कि ये क्वेश्चन जैसे ये कॉलम बने वर्टिकल फॉर्म में, कभी कभी ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी आते हैं। मतलब ये इस तरह लिखे हैं, दूसरी फॉर्म में भी आ सकते हैं, यूँ इसके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्वेश्चन 2 टेबल्स बने होंगे। तो अब इसका सोल्यूशन देखें, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट कॉलम एक्स, द नंबर 2 इज़ फ्रीक्वेंसी एफ, और अब इसका जो हमने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, रिप्रेजेंटेशन इज द सेम एक्स बार। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, अगर आप गौर करें तो जो आपके पास फॉर्मूला था वो था सिग्मा एफ बाय एन, जो आपका अनग्रुप था सिग्मा एफ बाय एन। तो कभी भी अगर आपको अगर एक भी फार्मूला याद है, मीन्स अगर आपने अनग्रुप के सारे फार्मूलाज याद कर लिए, तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है उसको ग्रुप में कन्वर्ट करना। कैसे, ये देखें लिखा है सिग्मा एफ बाय एन, यानी कि ये सिग्मा एफ है तो यहाँ पर था सिग्मा एक्स, दिस इज़ नॉट एफ बट एक्स, सिग्मा एक्स है और जहाँ भी एक्स है उसके साथ एफ़ को लगा दें। तो देखिए ये आपका एफ़ आ गया और एन की जगह रिप्लेस कर देते हैं सिग्मा एफ़ को, तो ये आप अनग्रुप से ग्रुप में शिफ्ट हो जाते हैं। दोबारा देखें, सिग्मा एक्स बाय एन है, आप सिंपल क्या करेंगे, एक्स की जगह आपने एक्स के साथ आपने एफ़ को मल्टीप्लाई करा देना है और एन की जगह हमेशा रिप्लेस करेंगे सिग्मा एफ़। सो दैट वाज योर अनग्रुप एंड दिस इज़ योर ग्रुप डेटा।
तो सिंपल थोड़ा और से फोकस करें, गौर करें। अब आपका फॉर्मूला जो आपसे पूछ रहा है आपने बस उसको फॉलो करना है। व्हाट ही इज आस्किंग, यू हैव टू ऑलरेडी कॉलम दैट आर गिवन इन योर क्वेश्चन, द वेरी वन इज एक्स एंड द अदर इज एफ। एफ इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद एक्स, नो मीन्स हर एफ को हर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 ज़ा 3, 8 2 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 1 ज़ा 5। अब उसके साथ एक और भी आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, जिसका मतलब है सम अप करना। अब इन सबको आप सम कर दें, यू विल गेट 49। अब नीचे ज़रा गौर से देखें तो क्या है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है, सिग्मा एफ। इसका मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को क्या कर दें, प्लस कर दें। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी यहाँ लिखें 49 और यहाँ लिखें 20 और इन दोनों को कर दें डिवाइड, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.45। तो और इसको 2.45 ही रहने दें या 3 कर दें, लेकिन इसको 2.45 ही रहने दें। तो ये है आपका आंसर। तो ये है आपका अरिथमेटिक मीन बाय जो ग्रुप डेटा है। दिस इज़ नॉट अनग्रुप बट दिस इज़ ग्रुप डेटा। अब नेक्स्ट देखें, ये 17 था। 18 क्वेश्चन देखें, फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग वेट्स ऑफ द टॉफ़ी बॉक्सेस इन ग्राम्स डिटर्मिन द मीन वेट। द सेम क्वेश्चन, बट अब इन दोनों क्वेश्चन में आपने डिफरेंस क्या देखना है। यहाँ डिफरेंस देखें, यहाँ पर क्लासेस और फ्रीक्वेंसी है। मतलब यहाँ पर आपके पास ये वाला क्वेश्चन था, अभी इसको ज़रा रिकॉल करें। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर एक्स और एफ गिवन है। अब इसका मतलब ये बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आपने एफ को एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जबकि आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर तो हमारे पास एक्स नहीं है, जैसे यहाँ पर एक्स आपको कॉलम नज़र आ रहा है, यहाँ कोई एक्स नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर कभी ऐसा हो कि आपको एक्स गिवन नहीं है और सिंपल क्लासेस या ग्रुप से एक और चीज़ आ गया, अब इस तरह की जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको क्लासेस बोलते हैं या ग्रुप्स बोलते हैं। इन ग्रुप्स को आपने क्योंकि आपको तो फॉर्मूला में एक्स चाहिए, यहाँ पर तो आपको कोई चीज़ एक्स नज़र नहीं आ रही और फ्रीक्वेंसी आपको पता है आपके पास है, लेकिन आपके पास एक्स नहीं है। इट मीन्स अभी हमने एक्स को खुद से क्रिएट करना है, बनाना है कि वो चीज़ क्या है। वो बहुत सिंपल है, किस तरह से हम एक्स को मालूम कर सकते हैं। तो अब देखें, ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन है एंड दिस इज़ योर सोल्यूशन और आंसर। आप करेंगे क्या, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू बॉक्स। सबसे पहले दो मेन जो कॉलम है जो क्वेश्चन में है उनको बना लें। ये आपकी क्लासेस या ग्रुप्स हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। हाउ कैन यू फाइंड योर एक्स और योर मिड पॉइंट। आपका इसको बोलते हैं मिड पॉइंट भी बोलते हैं और एक्स बोलते हैं। आपके पास जो क्लासेस है वहीं से आप इसका एक्स फाइंड आउट करेंगे। मीन्स इन दोनों नंबर्स को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें। 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 4.5। इसका मतलब है कि इसका जो मिड वैल्यू है, देन 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2 14.5, 20 + 29 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 24.5। सो सब्सिक्वेंटली आप यूँ सारे इसके जो है मिड पॉइंट मालूम कर लें। फॉर्मूला देखें, वही बेसिक फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है। तो ज़रा आप गौर से देखें, ये क्या लिखा है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एफ एक्स मीन्स अब जब आपको एक्स मिल गया तो हर एफ को हर एक्स से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। कॉरिस्पॉन्डिंगली 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, ये सब कुछ आपके पास यहाँ पर आ गया। अब आपने फॉर्मूले में इसको पुटिंग कर देना सिर्फ, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो यहाँ पर आपने, और ये सिग्मा है, इट मीन्स आपको एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा। सारे जितने भी आपके पास एफ एक्स हैं इन सबको प्लस कर दें और डिवाइड कर दें। सिग्मा जो आपके पास सारी फ्रीक्वेंसीज थी उनको प्लस करें और दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये आपको इसकी क्या मिल जाएगी, इसका अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे पास एक्स नहीं है तो हम कैसे मालूम करेंगे। अगर आपके पास क्लासेस और ग्रुप्स होते हैं तो सिंपल उनको कॉरेस्पॉन्डिंगली दोनों नंबर को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो यू विल गेट योर एक्स। नेक्स्ट देखें, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 19। ये आपने मालूम करना है मीडियन। और जैसे हमने सबसे पहले जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो वी जस्ट हैव डन द डेफिनेशन ऑफ मीडियन ऑल्सो द formulas. Now we are going to apply that definition and the formula for this question. और देखें, पढ़ें क्वेश्चन क्या है। On 5th terms test the mathematics a student has made marks of these, like these are the corresponding marks। और हमने मालूम करना है, ये देखें, ये आपको अगर याद हो तो ये थे हमारे फॉर्मूलाज दो। अब हम इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने डेफिनेशन में पढ़ा था दैट द वेरी फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द डेटा नो मैटर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। सो वट आई हैव डन लाइक बाय असेंडिंग अरेंजमेंट। तो पहले लिखें बाय अरेंजिंग द ग्रेड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये इसको अरेंजमेंट हमने किया असेंडिंग ऑर्डर में। सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड, अगर नंबर ऑफ पहली बात आपको ये पता होना चाहिए दैट यू हैव लर्न इन ग्रेड 2 3 व्हाट आर द इवन एंड ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आपके पास क्या नंबर होते हैं, ऑल दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स एंड ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 दे आर कॉल्ड इवन नंबर। देयर इज अ स्मॉल टेक्निक दैट आई हैव फॉर यू पीपल्स दैट अगर आपको कभी ना समझ आए तो वैसे तो समझ आनी चाहिए, बट स्टिल देयर आर सम स्टूडेंट्स हु डोंट नो व्हाट्स अबाउट इवन एंड ऑड। वो सब नंबर जो 0 2 4 6 8 हूँ एक्चुअली, और जैसे अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, ऐसा नंबर जिसमें 55 है, 56 है, 58
नॉट 55, जिसके लास्ट में 02468 आ जाए तो बस फिर आप ये सोच लें कि वो इवन नंबर्स हैं। फिर देखें 0 2, लाइक अगर मैं 50 कहती हूँ 50, दैन 52, 58, 56, 54, 62, 60, लाइक 64, 62, तो ये सब नंबर क्या है आपके पास इवन नंबर है, बिकॉज इनके लास्ट का जो डिजिट है वो क्या है 02468। तो ऐसे आपको पता चलता है कि ये इवन नंबर्स हैं। अब यहाँ देखें तो क्या है 1 2 3 4 5, 5 इज़ नॉट एन इवन नंबर, तो ये ऑड है। और ऑड के लिए हमारा डिफरेंट फार्मूला है जो कि आपको याद होगा कि जो रिप्रेजेंटेशन है मीडियन की वो ये है, साइज ऑफ दिस TH ऑब्जर्वेशन। ये TH क्या है अभी आपको पता चलेगा। अब देखें हमने ज़रा, अब n हमारा क्या है, यू नो व्हाट इज़ n, ऑलवेज वी नो दैट व्हेन यू काउंट द नंबर दोज कंप्लीट नंबर इज कॉल्ड n। राइट नाउ द टोटल नंबर आर 5, सो वी जस्ट पुट इन रिप्लेसमेंट ऑफ n 5, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2, इनकी कटिंग करेंगे तो 3 आएगा। इसको TH को बोलते हैं थर्ड, लाइक थर्ड वैल्यू जो है ऑब्जर्वेशन में। तो देखें 1 2 3, तो आपको ये नहीं कहना कि ये जो ये नंबर है ये आपका मीडियन है, बट वापस ऑब्जर्वेशन में जाएं, जो तीसरी प्लेस पे एक्चुअली नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो है आपका मीडियन। देखिए 86 क्या है आपका मीडियन है। ओके अब हम यही क्वेश्चन मीडियन ही मालूम करेंगे, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन कंसिडर करेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। द शुगर कंटेंट फॉर द रैंडम सैम्पल ऑफ 6 पैक्स ऑफ जूसेस ऑफ द सर्टेन ब्रांड्स आर फाउंड टू बी, दीज आर द नंबर्स, आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग द नंबर आउट, नाउ यू हैव टू फाइंड द मीडियन। अब ये भी मीडियन था, ये भी मीडियन। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, चेक करें इसका फॉर्मूला। वही सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं, अरेंज द वैल्यूज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। या आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 6 हैं, और 6 मैंने आपको बताया था 0 2 4 6 8, दे ऑल आर इवन नंबर, ये इवन है। नाउ द फॉर्मूला इज़ 1/2। अब ये फॉर्मूला हमारा पुराना फॉर्मूला है, हमने हर जगह n की जगह 6 लिखना है। 6/2 दैट इज़ 2 1 2, 2 3 6, 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 4th। नाउ दिस इज़ नॉट थर्ड, लाइक थर्ड पोजीशन कौन सी है, फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर पड़ा है वो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए 1 2 3, थर्ड पे क्या पड़ा है 2.5, फोर्थ पे क्या है 2.7, इन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा 2.6 मिलीग्राम। तो ये है आपका मीडियन फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर इवन एंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर ऑड, जो हमने ऑड के लिए किया था ये क्वेश्चन था। होप सो आपको ये क्लियर होगा, जो मीडियन मालूम करने के दोनों तरीके हैं। ओके नेक्स्ट आपने क्या करना है, The next question is harmonic mean with the help of group data। हमने जो पहले हार्मोनिक मीन किया था तो वो था अनग्रुप डेटा। बिल्कुल ये देखें सामने, ये हार्मोनिक मीन है जिसमें अनग्रुप डेटा था, आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपल फॉर्मूला 1/x था। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अनग्रुप के जो फॉर्मूलाज हैं वो याद कर लेते हैं तो ग्रुप में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। और वो क्या था कि जहाँ पर n है उसकी जगह सिग्मा f लिखेंगे, और जहाँ x है मतलब इस पूरी चीज़ को हमने f से क्या करना है मल्टीप्लाई। अब ज़रा चेक करें, अगर हम इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f1 सा f हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा f। तो ये देखें इसका फॉर्मूला सिग्मा f, यहाँ देखें मैच करें, शायद आपको नज़र आ रहा है, सिग्मा f डिवाइडेड बाय सिग्मा f बाय x। n की जगह क्या लिखा है सिग्मा f, और यहाँ पर जब आप f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f1 जार f u होगा। तो बहुत सिंपल है अनग्रुप से ग्रुप में कन्वर्ट होना। चलें अब देखिए हार्मोनिक मीन का इस तरह से एक बॉक्स बना होगा, मैंने आपको पहले बताया है, डोंट वरी इफ़ द बॉक्स इज़ नॉट लाइक दैट, लाइक मैंने बॉक्स को वर्टिकल फॉर्म में बनाया है और ये आपके पेपर में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी आ सकता है, मीन्स दिस कंडीशन। ओके टिल हेयर विद द कलर ऑफ लाइक मे बी वीडियो में ये कलर पता नहीं पर्पल है कि नहीं, बट दिस इज द पर्पल कलर एंड द ग्रीन कलर विद द सोल्यूशन। नाउ यू कैन सी दिस बॉक्स, द 2 column you have to pick from the question and the rest of the column we have to make according to the formula. Now these are the classes, और इसको क्लासेस भी बोलते हैं, ग्रुप्स भी बोलते हैं, मैंने सिर्फ क्लासेस लिखा है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि इस क्लास में और इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स आकर हो रहे हैं, जो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं या बार बार इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, 28 है, इस बात का ये मतलब है, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी है। ये यहाँ से कॉपी कर ली। प्रीवियस क्वेश्चन में वी हैव डन हाउ कैन यू फाइंड x, यू सिंपली हैव टू ऐड योर क्लासेस एंड डिवाइडेड बाय 2, मीन्स 33 + 40। पहले अच्छा कैलकुलेटर में बहुत केयरफुली, एक और थैंक्स गॉड मेरे माइंड में ये बात है कि आपने इसको भूलना नहीं, क्योंकि अगर आप अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे वैल्यू 33 + 40 डिवाइडेड बाय 2 तो आपको आंसर गलत मिलेगा। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग
अब देखें तो डिवीजन हमारा जो एक बड़ा ऑपरेटर है और प्लस एक छोटा ऑपरेटर है, तो कैलकुलेटर क्या करेगा, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो पहले डिवीजन करेगा और फिर प्लस करेगा, जबकि आपको पता है कि आपको पहले प्लस चाहिए और बाद में डिवीजन चाहिए। तो अपने कैलकुलेटर पे बी केयरफुल, कभी भी ये सवाल करते हुए पूरी वैल्यू को एक बार में नहीं लिखना। पहले आप क्या करेंगे, या तो ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि कैलकुलेटर को ये पता है, वो इतना स्मार्ट है कि पहले अगर कैलकुलेटर में कोई ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे तो वो पहले उसी को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप उससे थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट वर्क करें और आप पहले लिखें 33 + 40 इक्वल, देन डिवाइडेड बाई 2, देन इक्वल। तो इसलिए आप अपनी तरफ से शायद क्वेश्चन ठीक करके आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने कैलकुलेटर का राइट यूज़ नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलें अब देखें, पहले आपने प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो यू विल गेट 36.5। इसी तरीके से ये सारे जो हैं आपने इसके एक्स मालूम कर लेने हैं। फॉर्मूला में गौर से देखें तो फॉर्मूला व्हाट ही इज़ आस्किंग यू, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ बाय एक्स। अब व्हाट इज सिग्मा एफ, इट मीन्स कि आपको जितनी फ्रीक्वेंसी उनको भी प्लस करना पड़ेगा। उनको प्लस करने के लिए एक नया कॉलम ऐड करेंगे, एक नया, सॉरी नॉट द कॉलम बट द रो, इन सबको प्लस करेंगे, यू विल गेट 85। और यहाँ गौर से देखें तो जितनी भी आपके पास यहाँ उसने लिखा है एफ बाय एक्स, सो जस्ट कीप नॉट एक्स बाय एफ बट एफ बाय एक्स। आपकी छोटी सी मिस्टेक विल लीड्स टू द रॉन्ग क्वेश्चन। नाउ सी एफ बाय एक्स मीन्स 28/36.5, 31 डिवाइडेड बाय 44.5, 12 डिवाइडेड बाय 55.5। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इनको डिवाइड करें, पहले एफ फिर एक्स डिवाइड करेंगे, आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। गौर से देखें तो बाहर सिग्मा है, सिग्मा का मतलब प्लस करें, इन सारी वैल्यू को आप एडअप करें, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें, वैल्यू पुट करें। आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज को प्लस किया वो 85 है और इनको प्लस करके ये आया। अब इन सबको आपस में डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा 45.441। तो ये है आपका हार्मोनिक मीन विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डेटा। ओके, द वेरी नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन में आपने क्या करना है, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन की कभी कभी आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द वेरिएबल एक्स इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स लाइक दीज आर द ऑब्जर्वेशन इन द सिंबल लाइक दिस वी राइट। इसको हम इस तरह से फॉर्मूले को लिखते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। जितने भी नंबर होते हैं हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने नंबर होंगे, तो इसलिए कैसे x1.x1 कॉमा यहाँ पर एक्स एन लिखेंगे, अगर एन है तो 1/n, 2 है तो 1/2, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला और द डेफिनेशन, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनरली, सो वी हैव टू राइट n। ओके, अब इसके देखें ये अनग्रुप और ग्रुप का भी है। वैसे तो एक बेसिक फॉर्मूला हमने इसका क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ये अनग्रुप के लिए जब आपसे वो पूछेगा कि फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदमिक फॉर्मूला, सो द फॉर्मूला इज ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा log x डिवाइडेड बाय n। आपने ये फॉर्मूला देखें क्या करना है, ये इसका फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला तो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। अब ये अनग्रुप है और इसको ग्रुप में लेके जाना तो बहुत सिंपल है, आई हैव टोल्ड यू, सिंपल यही काम होगा। n की जगह क्या लगाएंगे, सिग्मा f, और यहाँ पर log x के साथ, यहाँ बाद में नहीं, यहाँ पहले सिग्मा के साथ आप क्या लगा दें, सिंपल f लगा दें, एंटी लॉग अपनी जगह पे रहेगा। सो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा एंड फॉर अनग्रुप डेटा। चलें अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अभी हमने किया तो साथ ही क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन आपने मालूम करना है, ये तो सिंपल है, अगर आपने इसी वीडियो में पहले देखा तो आपको समझ आएगी, ये हमने सिंपल बेसिक फार्मूला से किया है। अब देखते हैं जो उसके नेक्स्ट फार्मूला से उसके साथ क्या करेंगे। हमारा सेम क्वेश्चन यही है, आपने लिखा x मतलब 248, आप करेंगे log x, मतलब हर नंबर का बारी बारी आपने क्या ले लिया, log मालूम कर लिया। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप लिखें log 2 दैट इज 0.3010, log 4 यहाँ पर आपको फिक्स करना पड़ेगा। ओके, मैं आपसे कह रही थी कि यू हैव टू फिक्स द कैलकुलेटर। रिमेंबर, whenever you have to solve the logarithmic form then you need your you have to need to fix your calculator। अब अपने कैलकुलेटर को फिक्स करें, फिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा ये इस तरह से वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिक्स करेंगे टिल 4 डिजिट तक फिक्स करना है आपने, तो यानी कि आपको राउंड ऑफ खुद से नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो राउंड ऑफ होके ही आपको आंसर देगा। अब जब आप इसको फिक्स कर लेंगे, फिक्स भी कर लिया आपने, सबके बारी बारी लॉग भी अप्लाई कर लिए, तो ज़रा फॉर्मूले पे चलते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था वो ये कह रहा था कि आपने क्या करना है, यहाँ देखिए फॉर्मूला log x, यानी कि सबके बारी बारी लॉग ले लिए, फिर आपने इनका क्या करना है, प्लस करना है और डिवाइड करना है n से। तो ये देखें ये क्या है, यहाँ पर आपने log x सबको प्लस क्यों किया है, क्योंकि फॉर्मूले में आपको उसने बताया था सिग्मा log x मीन सबको कर दें प्लस और डिवाइड कर दें n से। एंड व्हाट इज़ योर n, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दें। अब क्योंकि एंटी लॉग है तो सिंपल एंटी लॉग आपको लेना होता होगा, जैसे शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे तो दैट विल बी योर एंटी लॉग। अगेंस्ट सुने, शिफ्ट लॉग करेंगे कैलकुलेटर पे, पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो आपको एंटी लॉग मिल जाएगा।
फिर ये वैल्यू लिखें, सो यू विल गेट 4.0004। ओके, इसको राउंड ऑफ कर लें क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो ये 4 आएगा। चेक करें, क्वेश्चन यही है बट देर आर 2 मेथड्स। यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आया था 4। 2 मेथड, आप फॉर्मूला कोई भी अप्लाई करें, आपके आंसर क्या है वो सेम आ रहे हैं, और ये है आपका दूसरा फॉर्मूला। चलें अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 23rd। अब ये ज्योमेट्रिक मीन बाय दिस इज फॉर द ग्रुप डेटा। कैसे पता चलेगा ये ग्रुप डेटा है? यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी यू हैव इन द बॉक्स। सो ये आपके पास यूँ क्वेश्चन है कि मार्क्स नहीं, कुछ मार्क्स हैं जो परसेंटेज में गिवन है और आपने क्या मालूम करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो देखें ये 2 कॉलम है, इन 2 कॉलम को आप देखें 33 से 40, इस कॉलम को आपने रिपीट किया, ये आया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। और ये आपको पता है कि एक्स कैसे मालूम करते हैं, आपने क्लासेस में से ही अपना एक्स मालूम करना है। 2 नंबर को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा इसका जो एक्स है, जिसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, ये आपका ये है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं सब कुछ, पहले हम देखते हैं अपना फॉर्मूला कि हमारा एक्चुअली फॉर्मूला में क्या पूछा जा रहा है। तो अगर अपना फॉर्मूला देखें तो वो क्या है, सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सबसे पहले देखें तो सिग्मा एफ है, इसका मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी सबको क्या कर दें प्लस। उसके बाद log x, आपको पता है अब आप पहले आपके पास x नहीं था क्वेश्चन में, आपने x मालूम किया, और हर जो क्वेश्चन है इनके हर x का log फाइंड करें, लाइक log 36.5, log 44.5, सबका आपने बारी बारी क्या कर लिया log। अब देखें आपको कैसे याद रहेगा फॉर्मूला, या एक्चुअली फॉर्मूला याद अगर आपने कर लिया तो प्रोसीजर या क्वेश्चन को सॉल्व करना सो सिंपल, जस्ट फॉलो द फॉर्मूला। मैं इस चीज़ पर इतना फोकस कर रही हूँ क्योंकि अगर आप एक दफ़ा फॉर्मूला याद कर लें तो देखें सोल्यूशन कितना सिंपल है। चेक करें, log x आपने ये कॉलम बना लिया, उसके बाद आपका क्या लिखा है f log x। सिंपल है कि f और log x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स यू नीड अनदर कॉलम कि हर f को हर log x से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। मीन्स ये आपका फ्रीक्वेंसी का बॉक्स है और ये आपका log x है। तो बारी बारी जैसे 28 को मल्टीप्लाई करें 1.5623 से, यू विल गेट दिस। इस तरह 31 को इससे मल्टीप्लाई करें, 12 को इससे मल्टीप्लाई करें, 9 को इससे मल्टीप्लाई करें, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो आपको सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगी। आप नेक्स्ट दोबारा से फॉर्मूला पे देखें तो उसने लिखे सिग्मा, मीन्स ये जो आपका नया कॉलम अभी ये बना है इन सबको प्लस कर दें, इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी सारी कैलकुलेशन कंप्लीट होगी, आप लिख दें यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखें, सिग्मा एफ आपने पहले ही से कर ली थी, सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस किया था, यहाँ लिखें। आप इन दोनों को कर लें डिवाइड और बाद में इनका ले लें एंटी लॉग। तो ये है, और ये परसेंटेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उसने परसेंटेज में पूछा था तो एंड पे हमने लगा दिया परसेंटेज का साइन। अगर वो परसेंटेज में ना पूछे तो आपको एंड पे परसेंटेज लगाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट्स एक्चुअली। चलें, ये हम मालूम करें स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हमने सबसे पहले किया था। स्टूडेंट्स देखें, मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बिल्कुल सेम है, बस एक छोटी सी चीज़ का फ़र्क है। वो डिफरेंस इसके पास ये है कि वेरिएंस में आपने स्क्वायर रूट नहीं लेना होता, यानी कि जो भी आप जो इसका फॉर्मूला है, और ये देखिए मैं आई वॉज जस्ट फाइंडिंग द पेज, सी दिस वन, दिस इज़ वेरिएंस एंड दिस इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। ज़रा फॉर्मूला चेक करें, दोनों फार्मूलाज बिल्कुल सेम है। देखें ये क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन। सिग्मा एक्स अच्छा ये एफ है क्योंकि ये ग्रुप डेटा के लिए है, वैसे अनग्रुप के लिए ये क्या है, ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एफ। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन और वो है वेरिएंस, दोनों फार्मूला सेम है, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम ग्रुप डेटा के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए ये डिफरेंट है। मींस अगर वेरिएंस के लिए देखा जाए तो क्वेश्चन क्या था, एक्स माइनस एक्स बार, और अगर मैं इसको ग्रुप में लेके जाना चाहूँ तो मैं सिग्मा के साथ क्या लगा दूंगी, एफ। तो ये वो चीज़ है। अच्छा अब देखें ये क्या है, लेंथ ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन लेंथ एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 चीज़ें उसने हमसे पूछी हैं, नंबर 1 मीन मालूम करें और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें। मीन हमें मालूम करना ही पड़ेगा, इसलिए मालूम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक्स बार जो है, एक्स बार का मतलब क्या होता है मीन, तो वो तो हमें नेचुरली फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है जो कि अब देखिए मैंने आपसे कहा था कभी कभी क्वेश्चन वर्टिकल फॉर्म में आता है, तो ये आपका वर्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल टेबल में। मीन्स देखिए पहला जो कॉलम है वो क्या है, क्लासेस हैं, ये जिसको इन्होंने लेंथ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपकी फ्रीक्वेंसीज है। अब अपना फॉर्मूला देखें, एक्स माइनस एक्स बार, सबसे पहले तो आपको एक्स बार चाहिए, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन मालूम करते हैं सारी वैल्यूज़ को, जो आपकी ये वाली वैल्यूज़ हैं, क्योंकि आपके पास तो एक्स नहीं है, तो जब तक हम एक्स नहीं फाइंड आउट करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले अपने क्लासेस लिखी, एफ लिखा। क्लासेस कैसे मालूम करते हैं, इन दोनों को प्लस करें 2 से डिवाइड करें, इन दोनों को प्लस करें 2 से डिवाइड करें, इन दोनों को प्लस करें 2 से डिवाइड करेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको मिल जाएगा आपका एक्स।
तो अब क्या सिग्मा एक्स बाय एन, सारी वैल्यू को प्लस करें और 5 से कर दें डिवाइड, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 1 2 3 4 5, तो आपको क्या मिल जाएगा 27। इस तरह से आपने मीन मालूम कर लिया। अब हमें मीन की, उन्होंने कहा था मीन मालूम करें और उसकी हेल्प से हम बाकी क्वेश्चन भी पूरा करेंगे। अब क्या है x माइनस एक्स बार। अब x माइनस एक्स बार कैसे करते हैं, हर x में से हर x बार को माइनस करेंगे, सेम जो हमने वेरिएंस में किया था। ये हमारा x है और ये हमारा x बार है, मीन्स 21 माइनस 27, 24 माइनस 27, ये हमारा बन गया x माइनस एक्स बार। फॉर्मूला में देखें तो x माइनस एक्स बार के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब इस पूरे कॉलम का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। नेगेटिव है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। फिर फॉर्मूला में देखो तो 7f लिखा हुआ है। इसका मतलब इस वाले जो अभी कॉलम आया है, इसको, इस सारे कॉलम को f से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 इंटू 3, 9 इंटू 6, 0 इंटू 12, 9 इंटू 9, 36 इंटू 2, ये मिल गया। फिर से फॉर्मूला में जाएं तो फॉर्मूला को देखें तो अब सिग्मा लिखा है। इसका मतलब ये जो अभी अभी रिसेंट आपने काम किया, इन सबको क्या कर दें, प्लस कर दें। नीचे देखें तो सिग्मा एफ मीन्स सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके यहाँ लिखें। अब सिंपल कर दें फॉर्मूला में पुट, तो ये है आपका, यहाँ जो ऊपर की वैल्यू थी वो ये है, नीचे एफ, इन दोनों को करें डिवाइड और इसका ले लें स्क्वायर रूट। एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा एक बात, अब डिफरेंस मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, अगर पेपर में कभी इसी का वेरिएंस मालूम करने के लिए दे दें, तो वेरिएंस मालूम करने के लिए आपने यही काम करना है। समझें कि वो आपसे कहता है कि वेरिएंस मालूम करें, क्वेश्चन सेम है, तो आपने ये स्क्वायर रूट नहीं लगाना, बस इतना काम करना है, स्क्वायर रूट ना लगाएं तो ये बन जाएगा वेरिएंस। एस, अच्छा याद रखने का तरीका क्या है, एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एस फॉर स्क्वायर रूट। यूँ याद रखें कि जब कभी स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है तो उसके ऊपर, उसके आंसर के ऊपर, उसके फॉर्मूला के ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा देना है। और जब कभी वेरिएंस मालूम करते हैं तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना। मीन्स में आपको एक, अच्छा दूसरी बात, ये पहले इसको एंडिंग कर लें। ये है हमारा मीन और ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। अब मैं, हमारी काम ख़त्म हो गया। बस मैं एक चीज़, अगर आप वो वेरिएंस आपसे बोले कभी, तो वेरिएंस का है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ये अनग्रुप के लिए है, ये आपका वेरिएंस है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट आपने नहीं लगाना, वेरिएंस को एस स्क्वायर से शो करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन का जब मालूम करते हैं तो क्योंकि हम जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा। और वेरिएंस के ऊपर क्या करते हैं हम, ये एस स्क्वायर से शो करते हैं और स्क्वायर रूट नहीं लगाते। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ स्क्वायर रूट का। और अगर ग्रुप का हो, अगर इसी का हम वो वेरिएंस मालूम करें ग्रुप के लिए, तो सिंपल यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, एफ लगा देंगे और नीचे सिग्मा एफ लगा देंगे, बस ये डिफरेंस है दोनों में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि आई हैव डन माई कंप्लीट वर्क कंप्लीट, इट्स योर जॉब टू डू योर वर्क नाउ, सो जस्ट बी फोकस्ड। होप इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वंस यू डू द प्रैक्टिस थिंग्स विल बी सो सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू स्टार्ट द चैप्टर यू शुड लर्न ऑल द फॉर्मूला, राइट ऑल द फॉर्मूला ऑन वन पेज, then start preparing your practice. Okay, now I'll see you in the next video. Till then, see you. Bye bye.